ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رمضان المبارک ہماری زندگی میں تشریف آیا اور ہم نے اپنی زندگی میں پھر رمضان المبارک کو پایا ہے. اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کو ہم سب کے لیے مبارک کرے. آمین. اور اس کی برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے. آمین. اور اس کا احترام کرنے اور اس کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا. آمین. میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ بڑی برکتوں والا اور بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کا احترام کرتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے. دیکھیے، ہر سال بارشوں میں سیلاب اور کتنی تباہی ہوتی ہے. اس سال شروع میں طوفان سیلاب آئے اور اخبار میں پڑھا کہ فلاں علاقے کے چند گاؤں زیر آب آ گئے. لیکن جب سے یہ ظلم و ستم کا دور اور کچھ نیک لوگ آئے ہیں اور ان کی تقریروں میں اسلامی اور نیکی کی جھلکیاں نظر آتی ہیں اور انہوں نے تھوڑا سا اللہ رسول کا کام کیا ہے تو سیلاب رک گئے ہیں یا نہیں، طوفان رک گئے ہیں یا نہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ جو تباہیاں ہوتی ہیں یہ سب ہماری بدعملی کا نتیجہ ہے. اگر ہم ٹھیک ہو جائیں اور حالات ٹھیک ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، کسی پر ظلم نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کا دیکھو کرم ہو گیا ہے کہ وہ سب سیلاب ہوا ہے، سب کچھ رک گیا ہے. نہیں تو ہر سال کتنی تباہی ہوتی ہے. تو دیکھنے میں بھی تو آتا ہے نا کہ ایک شخص تقریر کرتا ہے تو وہ پہلے اللہ رسول کا نام دیتا ہے، اللہ کی حمد کرتا ہے، رسول پاک پر درود شریف بھیجتا ہے، اسلام کا نام لیتا ہے. کتنا دل خوش ہوتا ہے. اور ایک شخص تقریر کرنے سے پہلے تالیاں بجائے، ناچے کودے، دونوں میں کتنا فرق ہے. تو اب دل خوش ہو رہا ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، ہوٹل بند ہیں، بازاروں میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی رمضان شریف کا مہینہ.
یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. دعا کرو کہ آئندہ بھی ایسے حالات رہیں اور ایسے لوگ منتخب ہوں جو اللہ کے پسندیدہ ہوں, جو اللہ کے دین کی خدمت کریں. ویسے ایک بات میں آپ کو سناؤں, یہ خوشخبری کی بات ہے کہ الحمدللہ ہمارا مسلک بالکل حق ہے. وہ کیسے کہ جو لوگ مزاروں پر جانا اور وہاں پھول برسانا اور وہاں دعائیں مانگنا شرک کہتے تھے, اب وہ بھی داتا صاحب کے مزار پر جانے لگے, وہ بھی پھول برسا رہے, چاہے ووٹوں کے لیے ہی کر رہے ہیں, مگر معلوم یہ ہوا کہ ہمارا مسلک حق ہے. اگر یہ غلط ہوتا تو یہ لوگ کبھی نہ کرتے, مجبوری کے وقت یہ بھی کرتے ہیں. تو بزرگوں کو ماننے والوں اور بزرگوں کے مزارات پر حاضری دینے والوں تمہیں مبارک ہو کہ دیکھ لیجئے اس انتخاب نے ہمیں مشرک کہنے والوں کو, شرک کہنے والوں کو بھی داتا کے دربار پہنچا دیا جی. تو ہم تو ویسے ہی جاتے ہیں. اور حالات جو ہیں, باقی میں اپنی بات نہیں کرتا, میں جو الگ ہوا ہوں سیاست سے تو وہ کسی مقصد کے تحت ہوا. یہ جو آج کل کی سیاست ہے, میرا مقصد ہے دین اور مسلک کی خدمت. میں الگ نہیں ہوا, ان کا مقصد بھی دین کی خدمت ہے. تو وہ کرسی پر پہنچ کے دین کی خدمت کریں گے, میں تو 12 مہینے ممبر پر بیٹھ کے کر رہا ہوں. تو دین کی خدمت تو ہم کر رہے جی. ان کو تو پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے, وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں کامیاب ہوں یا نہ ہوں, اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ کامیاب ہوں. لیکن ہم تو ممبر رسول پر بیٹھ کر آزادی کے ساتھ 12 مہینے تبلیغ کر رہے ہیں. ہمارا سلسلہ تو جاری ہے. باقی جو حالات ہیں, ان حالات کے پیش نظر میں جو الگ ہوا ہوں, تو وہ میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آپ کو نہیں بتا سکتا جی. پچھلے دنوں میں میرے متعلق اخبار میں آ گیا, کسی نے شرارت کی کہ یہ انتخاب میں حصہ لے گا اور پیپل پارٹی سے کھڑا ہوگا اور بھٹو سے ملاقات. یہ سب جھوٹ ہے, یہ کسی کی شرارت تھی. نہ میں کسی سے ملا ہوں اور نہ میرا کسی سے تعلق ہے, اور نہ ہی جب میں نے ایک مرتبہ اعلان کر دیا کہ میں الگ ہو گیا ہوں, تو اب مرد مومن کا کام نہیں ہے کہ ایک مرتبہ جو عہد اور عزم کر لے, ارادہ کر لے, پھر آئے دن ادھر ادھر نہیں. چنانچہ اخبارات میں اس کی تردید آ گئی, آپ حضرات نے پڑھ لی ہو. تو اس طرح میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ بھی ایسا ہو کہ لوگ میرے متعلق کچھ افواہیں اڑائیں. تو میں اپنے احباب سے یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ پر بالکل مطمئن رہیں. اگر کوئی ایسی بات سنے اس کو قطعاً سچا نہ سمجھے. اور میں تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ منع کر دو ایسی بات ہے, ہاں ان کو منع بھی کر دیا. تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے تو مجھے تو مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہو جائے, تو میں رمضان شریف میں وہاں جاؤں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد کو پورا کر دے اور پھر حضور کے دربار میں رہیں اور حج کر کے یاد رہیں. تو بہر صورت اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے, کرم فرمائے. آیہ کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, فرض کر دیے گئے ہیں تم پر روزے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ فرض کیے گئے تھے ان پر جو تم سے پہلے. اور یہ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ ہے آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں روزے کی فرضیت کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ یہ روزے تم پر اس واسطے فرض کیے گئے ہیں کہ تم پرہیزگار بن جاؤ, اور ساتھ ہمت افزائی
के लिए फरमाया कि ये न समझना कि तुम ही पर फर्ज हुए हैं, तुमसे पहली उम्मतों पर भी ये रोजे फर्ज थे। तो कहीं ऐसा न हो कि रोजे रखने में और रमजान का एहतराम करने में तुम पीछे रह जाओ और पहली उम्मतें तुमसे आगे बढ़ जाएं और सबकत ले जाएं और ज्यादा अजर व सवाब की मुस्तहिक हो जाएं। बल्कि मुसलमानों तुम कोशिश करो कि तुम अजर व सवाब में उनसे आगे बढ़ जाओ, इसलिए कि तुम खैरुल उम्मत हो, तुम खैरुल उम्म हो, बेहतरीन उम्मत हो उम्मतों में से। तो रोजा के फर्ज होने का मकसद बयान फरमाया कि तुम मुत्तकी बन जाओ। मैं आपको ये बताता हूं कि रोजे से तकवा और परहेजगारी का सबक कैसे मिलता है और हम कैसे मुत्तकी बन सकते हैं। बड़ी छोटी सी बात है, अगर आप तवज्जो करें। देखिए, पूरा रमजान का महीना हम सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अपनी मरहूब, महबूब और मतलूब चीजों को छोड़ देते हैं। जिन चीजों की तरफ बड़ी रग़बत होती है, जिन चीजों से बड़ी मोहब्बत होती है, उनको पूरा महीना सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक हम छोड़ देते। मसलन जो लोग चाय पीने के बहुत आदी हैं, अब वो चाय नहीं पियेंगे सारा दिन। जो पान खाने के आदी है वो पान नहीं खाएंगे। इसी तरह बाद लोग ऐसे हैं जो सिगरेट के बगैर नहीं रह सकते, हर 5 मिनट के बाद सिगरेट सुलगाई या वो भी नहीं पिएंगे। इसी तरह दूसरी चीजें हैं हलाल तैयब, बावजूद प्यास के ठंडा पानी नहीं पीते, बावजूद रग़बत के जो हलाल चीज होती है उसकी तरफ हाथ नहीं उठाते। चाहे नई शादी हुई हो, घर में हसीनो जमील बीवी होती है, उसकी तरफ से बात रहते हैं। तो ये सारा कुछ क्यों होता? सबक हासिल कीजिए कि हमने सुबह से लेकर शाम तक हलाल चीजों से भी अपने हाथ खींच लिया और उनसे भी रुके रहे, सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ताला का हुक्म है। अल्लाह के हुक्म के पीछे नजर हमने हलाल चीजों को भी छोड़े रखे, छुप कर भी उनका इर्तिकाब नहीं करते। मसलन गुस्ल खाने में नहाने लगे तो गुस्ल खाना तो बंद होता है, तो आदमी ख्याल करे कि मुझे कोई देख तो रहा नहीं, तो मैं घूंट पी लूं तो क्या है? घूंट भी पी सकता हूं, फिर भी मैं रोजेदार कहला सकता हूं, किसी ने देखा तो है नहीं, किसी को पता तो है नहीं। तो गुस्ल खाने में छुप कर गुस्ल करते वक्त मुंह में पानी डालेगा तो एहतियात से काम लेगा कि कहीं पानी हलक से नीचे ना उतरे। छुप कर भी इस बात का ख्याल करेगा। क्यों? सिर्फ इसलिए कि कोई और नहीं देख रहा तो क्या हुआ, जिसके हुक्म की तामील करते हुए जिसकी रजा के लिए मैंने रोजा रखा है वो तो देख रहा है। तो ये एक महीना ट्रेनिंग दी जाती है मुसलमान को कि है मुसलमान तू सबक हासिल कर कि जब तूने अल्लाह के हुक्म के पेशे नजर अल्लाह की रजा के लिए पूरा महीना हलाल चीजों को छोड़े रखा, तो हराम चीजों को छोड़ देने का हुक्म भी तो उसी अल्लाह ने दिया है। हराम चीजें तो हैं ही हराम, नापाक चीजें तो हैं ही नापाक, उनको छोड़ने का हुक्म भी उसी अल्लाह ने दिया है। जिस अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए तू पूरा महीना हलाल चीजों को छोड़े रखता है, तो ये पूरा महीना 11 महीनों के लिए तेरे लिए तकवे और परहेजगारी का बायस बन जाए कि तू फिर अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए जिन चीजों से अल्लाह ने मना किया है उनसे रुका रहे। तो जो शख्स ये सबक हासिल करता है और हलाल पे इख्तियार करता है, हराम से इज्तिनाब करता है, वो मुत्तकी परहेजगार बन जाता है। तो फरमाया कि रोजा इसलिए फर्ज किया गया है कि तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओ। रमजान के माना क्या? ये रमजान बना है रमजुन से, और रमजुन के माना है गर्म करना, जलाना। तो रमजान के माना हुए गर्म करने वाला, जलाने वाला। तो ये रमजान जब आता है तो लोग इसके रोजे रखते हैं, तो ये रोजा रोजेदार को पिछले वक्त थोड़ा सा गर्म करता है और गर्म करके रोजेदार के गुनाहों को जला देता।
इसी लिए फरमाया कि इसके 3 अशरे हैं। अव्वलुहु रहमतुन, पहला अशरा जो है वो रहमत, वऔसतुहु मग़फ़िरतुन, और दूसरा अशरा मग़फ़िरत है, और वआखिरुहु इत्कुम मिनन नीरान, और तीसरा अशरा दोज़ख से, जहन्नम से आजादी का। जैसे तरतीब से कारीगर काम करता है, पहले गर्म करता है, फिर उसकी मिलावट अलग करता है, फिर उसको अलग करने के बाद जेवर वगैरह बनाता है, इसी तरह अल्लाह फरमाता है पहले तो होती है रहमत, फिर होती है मग़फ़िरत, और फिर आखिर जहन्नम से आजादी हो जाती है। तो रमजान के माने है गर्म करने वाला, जलाने वाला, तो ये रोजेदार के गुनाहों को जला देता, रोजेदार को गुनाहों से पाक कर देता। इसी वास्ते नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन साम रमज़ाना ईमानन वहतिसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबे। हुजूर ने फरमाया जो रमजान के रोजे रखे ईमान और एहतिसाब के साथ, उसके गुज़श्ता के सारे गुनाह माफ हो जाते, बख्श दिए जाते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 2 क़ैदे लगाए, मन सामा रमज़ान, जो रमजान के रोजे रखे, ईमानन वहतिसाबन, ईमान और एहतिसाब के साथ। ईमान नाम है अकीदों के सही होने का। मोमिन वो है जिसके अकीदे दुरुस्त है, जिसके अकीदे दुरुस्त नहीं, चाहे वो कलमा पढ़े, नमाजें पढ़े, रोजे रखे, सब बेकार और फजूल, क्योंकि आमाल की कबूलियत के वास्ते ईमान का होना शर्त है। तो ईमानदार होना ये पहली बात। चुनांचे आप हज़रात भी इस बात को मानते हैं, वो लोग कादियानी कलमा पढ़ते हैं या नहीं, नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, कुर्बानियां करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर वो मोमिन नहीं, इसलिए कि उनका अकीदा ठीक नहीं। खत्मे नबुव्वत अकीदा है, उनका अकीदा ठीक नहीं, लिहाजा आपने ना उनके कलमे को, ना नमाजों को, ना रोजों को देखा, तो मालूम हुआ कि ईमान नाम है अकीदों के सही होने का। मोमिन वो है जिसका अकीदा दुरुस्त है, जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं है वो मोमिन नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी ज़माना मुबारका में जो मुनाफिक थे वो भी नमाज रोजे के पाबंद, कलमा वगैरह सब कुछ पढ़ते, मगर अल्लाह ने फरमाया वमा हुम बिमुमिनीन, ये मोमिन नहीं है। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकादिबून, अल्लाह शहादत देता है कि बेशक मुनाफिक झूठे, और फरमाया इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, ये मुनाफिक जो हैं ये जहन्नम के सबसे नीचे के तबके में होंगे। तो नमाज रोजा तो करते थे, कलमा भी पढ़ते, नाम भी उनके मुसलमानों वाले थे, बज़ाहिर काम भी मुसलमानों वाले थे, मगर अकीदे दुरुस्त नहीं। फी कुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में मरज था, बीमारी। तो ये याद रखो कि ईमान नाम है अकीदों के सही होने का। मोमिन वो है जिसके अकीदे दुरुस्त हैं, जिसके अकीदे दुरुस्त नहीं है वो मोमिन नहीं है। तो पहली कैद तो ये लगाई कि जो रमजान के रोजे रखे ईमान के साथ, यानी सही अकीदा हो, सच्चा मोमिन हो। और दूसरी कैद क्या लगाई, फरमाया एहतिसाब, ईमान के साथ एहतिसाब। एहतिसाब किसको कहते हैं? एक है हिसाब और एक है एहतिसाब। हिसाब होता है लिखना, आमद और खर्च वगैरह का लिखना, ये हिसाब है। और हिसाब की जांच पड़ताल करना उसको कहते हैं एहतिसाब। और जो जांच पड़ताल करने वाला होता है उसको अरबी में कहते हैं मुहतसिब, इंग्लिश में कहते हैं ऑडिटर, जो हिसाब किताब चेक करता है कि कहीं गलती तो नहीं है, उसको अरबी में क्या कहते हैं? मुहतसिब। और एहतिसाब के माना है जांच पड़ताल करना। तो नबी करीम ने फरमाया जो रमजान का रोजा रखे एहतिसाब के साथ, क्या मतलब कि रोजे की हालत में अपना एहतिसाब करता रहे, जांच पड़ताल करता रहे कि मेरी आंखों का इस्तेमाल कहीं गलत तो नहीं हो रहा, मेरे कानों का इस्तेमाल कहीं गलत तो नहीं हो रहा, मेरी जुबान का इस्तेमाल कहीं गलत तो नहीं हो रहा। यानी जुबान को झूठ से, गीबत से, बेहुदा गोई से बचाए और आंखों को हराम चीजों के देखने से बचाए
कानों को हराम चीजों के सुनने से बचाए, जो हाथों से कोई बुरा काम न करे, पैर से किसी बुरे काम की तरफ चल के न जाए, दिल में बुरे इरादे और बुरे मंसूबे न बनाए। इस तरह अपनी जांच पड़ताल करता हुआ जो रोजे रखे, जिन कामों को करना है उनको करे, जिनसे बचना है उनसे बचे। तो फरमाया ऐसा रोजेदार जो है उसके गुज़श्ता के सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और अगर कोई रोजे रखे और साथ झूठ भी बोलता रहे और साथ गीबत भी करता रहे, गालियां भी बकता रहे और दम भी तोड़ता रहे, ना आंखों पर कंट्रोल है, ना कानों पर कंट्रोल है, ना दिल के ऊपर कोई मुहासबा है, तो ऐसा रोजेदार जो है, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जो। बहुत से रोजेदार ऐसे हैं कि उनको सिवाय भूखा प्यासा रहने के और रोजे से कुछ हासिल नहीं हो, यानी जो रोजे का मकसद है वो पूरा नहीं करते। जब झूठ भी बोलते रहे, गीबत भी करते रहे, गालियां भी बकते रहे, कम भी तोलते रहे और भी बुराइयां करते रहे, तो ऐसे रोजेदार को रोजे से क्या फायदा हुआ सिवाय भूखा और प्यासा रहने। तो जो रोजे का हक अदा करे, जिन चीजों को करना है उनको करे, जिनको नहीं करना उनसे इज्तिनाब करे, तो ऐसे रोजेदार के सारे गुनाह बख्श दिए जाते हैं। हज के बारे में भी फरमाया मन हज्जा लिल्लाहि लम यरफुस व लम यफसुक रजा कयौम वलदतहु उम्मुहु। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो बैतुल्लाह शरीफ का हज करे अल्लाह की रजा के लिए, और हज में ना तो रिफ्स करे ना फिस्क करे, यानी ना तो जुबान से कोई बेहयाई बेशर्मी का कलमा निकाले और ना कोई बेहयाई और बेशर्मी का काम करे और ना फिस्क करे, यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी न करे। तो फरमाया ऐसा हाजी जब हज करके वापस लौटता है तो उसके सारे गुनाह बख्श दिए जाते, वो ऐसा हो जाता है जैसा कि पहले दिन का बच्चा गुनाहों से बिल्कुल पाक होता। तो देखो हज भी पाक करता है, जबकि हज शरीयत और सुन्नत के मुताबिक किया जाए, और रमजान भी पाक करता, इसकी वजह से भी सारे गुनाह माफ हो जाते। लाख आदमियों को जहन्नम से आजाद फरमाता है हर साथ में, 7 लाख आदमियों को दोजख से आजाद करता। और दिन रात की 7 से मुराद अगर 1 घंटा हो तो 24 घंटे हैं दिन रात के, और 7 का लफ्ज़ है हदीस में, अब पता नहीं 7 से मुराद 1 घंटा है या कितना वक्त है। और फरमाया कि जब जुमे की रात आती है और जुमे का दिन आता है तो जितने पूरे हफ्ते में आजाद होते हैं अल्लाह ताला उतने हर साथ में आजाद करता है। जुमे की रात और जुमे का दिन इतनी बरकत है। और फिर फरमाया कि जितने सारे महीने में आजाद होते हैं उतने आखिरी रात में आजाद फरमाता है। तो कोई हिसाब है। और फिर शबे कदर की बरकत अभी अलग है, क्यों से रात में कितने आजाद होते। तो ये रहमतों का, बख्शिशों का और बरकतों का महीना। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर मेरी उम्मत को ये मालूम हो जाता कि ये रमजान कितनी बरकत वाला महीना है तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करती कि सारा साल ही रमजान रहे, 12 महीने ही रमजान रहे। मगर कुर्बान जाए रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के, उन्होंने तो अपनी उम्मत के वास्ते सारा साल ही रमजान बना दिया। कैसे? फरमाया कि जो रमजान शरीफ के बाद 6 रोजे ईद के महीने में रख ले, गोया उसने सारा साल ही रोजे रखे, सारा साल ही रोजे रखे। वैसे भी आप हिसाब लगा लें कि 30 दिन तो हो गए महंगे, 29 हो गए तो रब का इनाम है। महीना तो वैसे 30 का ही गिना जाता है ना, और 6 हो गए, वो 30 और 6 36। और अल्लाह फरमाता है मन जा बिल हसनाते फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी करेगा, एक नेकी के साथ आएगा, हम उसको बदला 10 गुना देंगे। तो एक रोजे के बदले 10 रोजे, और 36 रोजों के बदले 360, और साल के दिन भी 300
60 के करीब होते हैं। तो सारा साल हुजूर ने रमजान बना दिया कि नहीं, कि 6 रोजे अगर ईद के महीने में भी रख लो तो गोया तुम्हारे साल भर के रोजे हो गए, सारा साल ही तुम्हारे लिए रमजान बन गया। तो जो हर साल ही 6 रोजे ईद के रख ले उसकी सारी उम्र ही रमजान हो गई। ये रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रहमत है। इस महीने में नफल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्जों का सवाब 70 फर्जों के बराबर है। इससे एक मसला निकलता है, वो मसला सुनो और सबक हासिल करो। तरावी का मसला है। रात मैंने यहां भी चंद तरावी पढ़ी है हिसाब की मस्जिद में, पता है किसी को? चंद दोस्तों ने देखा। मैं सुनने आया था कि हाफिज साहब कैसा कुरान शरीफ पढ़ते, तो यहाँ मैं आपकी मस्जिद में आया था, इसी गुलजार हबीब मस्जिद में। रात को यहाँ मैंने चंद तरावी पढ़ी। हमारे कुतुब साहब माशाअल्लाह हर 2 रकअतों के बाद बड़ी प्यारी आवाज लगाते और मैं पीछे खड़ा हुआ और फिर मैं चला गया, क्योंकि मैं उधर अपनी मस्जिद गौसिया में नमाज तरावी पढ़ता, मगर यहाँ भी ताल्लुक है तो मैंने कहा कि मैं सुनूं जाके। तो माशाअल्लाह मस्जिद भरी हुई थी, देख कर बड़ा दिल खुश हुआ। लेकिन जब 8 तरावी हुई तो कुछ लोग निकल कर पीछे आ गए, वो थोड़े से 2-4, या तो वो पानी वानी पीने के लिए हटे होंगे या फिर वो 8 वाले होंगे जी। तो मैं इस सिलसिले में आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि पाकिस्तान बनने से पहले एक मुनाजरा हुआ था गैर मुकल्लिदों के और हनफियों के दरमियान 20 तरावी पर। मैंने वो सारा मुनाजरा अपने कानों से सुना। हमारी तरफ से अहले सुन्नत की तरफ से मुनाजिर थे हजरत मौलाना मोहम्मद उमर साहब इछवी मरहूम मगफूर। तो मैं मिंबर पर बैठा हुआ हूं, उनका ये ऐलान था कि अगर कोई हदीस चाहे ज़ईफ ही हो, सही ना सही ज़ईफ ही हो, वो दिखा दो जिसके साथ तरावी का लफ्ज हो और 8 का आदद हो, तो ये 500 रुपया इनाम दे। कोई हदीस नहीं दिखा सकता। और मौलवी साहब कहते थे मैं दिखाता हूं सही हदीसें, 20 का आदद भी और लफ्ज़े तरावी भी, और तुम मान लो पैसा एक ना दो। तो आखिर वो मौलवी भाग गया जो मुकाबले पर था। अहले सुन्नत को फतह हुई, 3 रोज तक मुनाजरा जारी रहा। तीसरे दिन वो भागा और मौलाना साहब की आदत ये थी कि जब तक मुखालिफ भाग नहीं जाता था मैदान नहीं छोड़ते हैं। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, उनके पास सिर्फ एक हदीस है कि नबी करीम रमजान में भी और गैर रमजान में 8 रकअत पढ़ते और 3 वितर पढ़ते थे। ये रिवायत है उम्मुल मोमिनीन महबूबा सैयदुल मुरसलीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये हदीस जो है, इस हदीस को मुहद्दिसीन ने नमाज़े तहज्जुद पर महमूल किया है, क्योंकि माई साहबा फरमाती हैं कि हुजूर रमजान में भी और गैर रमजान में 12 महीने पढ़ते थे। और फिर उस हदीस में यह भी तस्रीह है कि इशा की नमाज पढ़कर तशरीफ लाते थे और सो जाते थे और फिर उठकर ये पढ़ते। तो अगर इस हदीस पर अमल किया जाए तो फिर तो 8 पढ़ने वालों को चाहिए कि 12 महीने पढ़ा करें, क्योंकि हुजूर ने तो रमजान गैर रमजान 12 महीने में पढ़ी। दूसरी बात यह है कि हुजूर ने जमात के साथ नहीं पढ़ी। माई साहबा कहती घर में पढ़ते, ये जमात के साथ पढ़ती। तीसरी बात यह है कि इशा की नमाज पढ़कर हुजूर आकर सो जाते थे, फिर उठकर पढ़ते थे और ये सोने से पहले पढ़ते, और ये सिर्फ रमजान का महीना पढ़ते। तो वो हदीस जो ये पेश करते हैं वो है नमाज़े तहज्जुद के बारे में। नमाज़े तरावी जो है ये हुजूर ने सिर्फ 3 रोज पढ़ी, चौथे दिन आप तशरीफ नहीं लाए, और 3 रोज जो पढ़ी है जमात के साथ पढ़ी। सहाबा कहते हैं पहले दिन तो आधी रात हो गई, दूसरे दिन आधी से भी ज्यादा हो गई, तीसरे दिन हमें अंदेशा हो गया कि कहीं सहरी का वक्त ही फौत ना हो जाए, तो हम दौड़ कर घर आए, 1-2 लुकमे खाए और पानी पिया वकर खत्म। तो 3 दिन हुजूर ने पढ़ी, चौथे दिन हुजूर तशरीफ नहीं लाए। तो सहाबा ने अर्ज किया हुजूर आज रात आप तशरीफ नहीं लाए, तो फरमाया कि मैंने इस वास्ते दायमी तौर पर यह नमाज तरावी नहीं पढ़ी कि तुम पर कहीं फर्ज ना हो। अब 3 दिन पढ़ के मैंने तुम्हारे लिए सुन्नत बना दिया है, अगर मैं हमेशा पढ़ूं तो कहीं तुम पर फर्ज ना हो जाए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने 3 रोज जमात के साथ नमाज तरावी पढ़ा। फिर लोग अलग अलग पढ़ते थे रमजान,
حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے 2 سال بھی لوگ الگ الگ پڑھتے. جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو حضرت عمر نے حضرت علی کو بڑے بڑے صحابہ کو اکٹھا کر کے کہا کہ اب تو قرآن کا نزول بند ہو گیا, وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے. اب تو جو چیز فرض ہونی تھی وہ ہو گئی, جو واجب ہونی تھی وہ ہو گئی. شریعت جو ہے وہ مقرر ہو گئی ہے, مکمل ہو گئی ہے. اب تو احتمال نہیں ہے کہ آیت اترے گی اور یہ فرض ہو جائے گی. تو حضور کی سنت تو ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا. حضور نے 3 دن جماعت کے ساتھ پڑھائی ہیں, تو اب باقاعدہ جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے. سارے صحابہ نے اتفاق کیا. حضرت عمر نے مسجد کو روشن کیا, مسجد میں روشنی زیادہ کی, جتنی پہلے ہوتی تھی نا اس سے زیادہ کی, اور جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھنے کا حکم دیا اور 20 تراویح پڑھنے کا حکم دیا. اور پھر حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بھی 20, حضرت علی کے زمانے میں بھی 20. اب میں آپ کو انصاف کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ اگر نبی کریم نے 8 پڑھی ہوتی تو یہ کبھی ہو سکتا تھا کہ حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی 20 پڑھتے؟ کیا وہ حضور کی سنت کے خلاف کرنے والے تھے, بدلنے والے تھے, زیادتی اور کمی کرنے والے تھے؟ اور اگر انہوں نے بالفرض زیادتی کی تھی کہ حضور نے 8 پڑھائی تھی اور انہوں نے 20 کا حکم دے دیا, تو سارے صحابہ کبھی ان سے اتفاق کر سکتے تھے؟ آپ جانتے نہیں ہیں کہ صحابہ وہ تھے کہ حضرت عمر منبر پر خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. صحابی نے کہا کہ مال غنیمت کی چادریں جو تقسیم ہوئی ہیں وہ آپ کے حصے میں 1 چادر آتی تھی, مگر آپ کے جسم پر ہم 2 چادروں کا کپڑا دیکھ رہے ہیں. جب تک آپ ہمیں یہ نہیں بتا دیں گے کہ یہ دوسرا کپڑا آپ نے کہاں سے لیا ہے, اس وقت تک ہم آپ کو خطبہ نہیں پڑھنے دیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے بھائی, تو نے جو اعتراض کیا وہ بالکل ٹھیک ہے, اللہ تجھے جزائے خیر دے. اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اٹھو, اس کا جواب دو. تو حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ اٹھے اور اس سوال کرنے والے سے کہا کہ آپ کا سوال صحیح ہے, جو میرے حصے میں چادر آئی تھی وہ میں نے اپنے ابا جان کو دی ہے اور انہوں نے اس کا قمیص بنا لیا, ایک ان کی اپنی اور ایک میں نے دی ہے. وہ صحابہ جو خطبہ نہیں پڑھنے دیتے کہ جب تک آپ یہ نہیں بتائیں کہ ہم خطبہ نہیں پڑھنے دیں گے, یہ ہو سکتا تھا کہ حضور نے 8 پڑھائی ہوتی اور وہ 20 کا حکم دے دیتے اور سارے صحابہ اس پر اتفاق کر لیتے. سارے صحابہ کا اتفاق کرنا اور 20 پڑھنا خلفائے راشدین کا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے بھی ان 3 باتوں میں 20 ہی پڑھائی, 20 ہی پڑھائی. افسوس ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ 20 تراویح بدعت عمری ہے, موت کہ حضرت عمر کی جاری کردہ یہ بدعت عمری اس کا نام رکھا ہوا. استغفر اللہ. ایسے لوگ کیا قیامت کے دن جواب دیں گے حضرت عمر کے سامنے کس طرح ہوں گے؟ وہ تو ہیں بھی بڑے جلال والے, وہ تو بڑے جلال والے, انہوں نے ان کو معاف نہیں کرنا. چلو خیر, میں اب تراویح پر بحث نہیں کرتا. میں جو بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ نفلوں کا ثواب ہے فرضوں کے برابر, اور حکم ہے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرو. جب فرمایا کہ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا 70 فرضوں کے برابر, تو یہ رغبت ہے نا کہ بھئی عبادت زیادہ کرو. اب فرائض میں تو ہم زیادتی نہیں کر سکتے, نوافل تو جتنے چاہو کرو, ساری رات پڑھتے رہو, اس پر قید نہیں. اور یہ تراویح جو ہے یہ نفلی عبادت ہے. تو ذرا سن لو, میں ایک ایسی بات کرتا ہوں کوئی عقل مند اس کا انکار نہیں کرے. قیامت کے دن ہم جائیں گے, ہمارے پاس 20 تراویح ہوگی, ان کے پاس 8 ہوگی. اگر 8 ہوئی بالفرض, رب کہے گا تراویح تو 8 تھی, تم نے 20 پڑھی, تو ہم کہیں گے مولا 8 تراویح سمجھ لے, 12 نفل بنا لے. کچھ دینا ہی ثواب دے دے, نہیں تو تیری مرضی, تو برا تو کام نہیں نا کیا, تیری عبادت ہی کی ہے, نماز ہی پڑھی ہے, نہیں تمہیں قبول, تیری مرضی, تم دینا ہی دے دے, نہیں تو نہ صحیح, نفل بنا لے. اچھا, تو ہم تو فائدے میں رہیں گے, 20 لے کر جائیں گے, 8 ہوئی تو کہیں گے 8 لے لے, باقی 12 فائدے. اور اگر یہ گئے 8 لے کر اور ہوئی 20 تو یہ کیا کرے گی؟ ان کے پاس ہوگی 8 اور حکم ہوگا کہ پرانی تو تھی 20 اور تم نے 8 پڑھی تو یہ 12 کدھر سے لائیں گے؟ اب میں مثال دیتا ہوں کہ زمیندار لوگ جو ہیں ان کے لیے زمین کا معاملہ دینا پڑتا, دکاندار تاجر لوگ ہیں ان کو ٹیکس دینا پڑتا. تو اگر آپ کا وکیل یا کوئی مشورہ دے کہ آپ کو 20 روپے ٹیکس پڑے گا, دوسرا کہے نہیں 8 پڑے گا, تو بولو جیل میں کتنے ڈال کے جانے چاہیے؟
अक्लमंद यही रहेगा कि 20 डाल के जाओ, अगर 8 हुए तो 8 दे देंगे, बाकी 12 जेब में रहेंगे परवाह, और अगर 20 हुए तो 20 दे देंगे। और अगर 8 जेब में डाल के चले गए और आगे मुतालबा हो गया 20 का, तो फिर क्या करेंगे? 12 किधर से लेंगे? तो भाई हम तो फायदे में है, हम तो ज्यादा इबादत करते हैं, नफल पढ़ते हैं, इनका सवाब फर्जों के बराबर है, और फिर सारी उम्मत का इज्मा है? मक्के मदीने में भी 20 ही पढ़ी जाती है, हालांकि उनका मजहब अलग है, मगर तरावी को 20 ही पढ़ते। चुनाचे एक लतीफा है कि मदीना तैयबा में हुजूर के मिंबर के पास में बैठा हुआ था, मेरे साथ एक 8 पढ़ने वाला गैर मुकल्लिद, और उसके आगे एक और शख्स था, उसने ऐसे बैठे बैठे कहा कि इस हुकूमत का मजहब क्या है? तो वो फौरन मेरे साथ वाला बोला कि अहल हदीस। तो मैंने कहा कि अगर ये अहल हदीस है तो फिर 20 तरावी क्यों पढ़ते? अहल हदीस तो कहते हाथ पढ़ो, ये तो 20 पढ़ते। तो वो चुप हो गया। मैंने कहा कि इनका मदद हम्बली है, ये अपने आप को हम्बली कहते। इमाम अहमद बिन हम्बल के नजदीक भी 20, इमाम मालिक के नजदीक भी 20, इमाम शाफई के नजदीक भी 20, इमाम अबू हनीफा के नजदीक भी 20 तरावी पर उम्मत का इजमा है, हर जगह 20 पढ़ी जाती। इन्होंने पता नहीं आज कितनों कर ली, इन्हों की आदत है हमेशा घाटे बनने जान है, जिधर 3 है कि 1 पढ़ते हैं। और हमारे वो पंजाब में एक मौलवी था, उसने बड़ा सस्ता काम किया हुआ था, वो 8 तरावी एक ही नीयत से नींद लेता है, पर 8 पढ़ के एकदम सलाम फेर जाते, भीतर एक पढ़ जाते, चलो भी करो कर, 2 करके नहीं पढ़ता, करती है यहाँ है। लोग बड़े मजे में रहते थे, 8 मिनट लगते थे फारिग हो जाए, कहते बड़ा चंगा मौलवी। आजकल तो लोग इसको पसंद करते हैं, जल्दी फारिग कर। तो बाहर सूरत मैं अर्ज ये कर रहा था कि तरावी 20 है और इस पर इजमा है, और इतनी हदीसें हैं 20 के बारे में कि उलमा ने पूरी किताबें लिखी हैं इसके ऊपर। तो मेरे दोस्तों शक न करो, 20 पढ़ा करो, 8 निकल गए, 8 पढ़ के ना निकल जाया करो। वो पंजाब में हमारे एक बुजुर्ग थे, उनका जरा बुजुर्ग भारी सा था, पेट भी बड़ा था। तो आपको पता है कि इस किस्म के लोग बड़ी इबादत वगैरह में उठने बैठने में बड़ी तकलीफ होती है। तो 8 पढ़ के निकल गए, थक गए उन्हें। मैं कहा चाचा जी क्या हुआ? कहने लगा यार मैं थक गया। तो मैं कहा फिर बाकी कौन पूरियां करेगा? कहने लगा वो तो 8 पढ़ देंगे तो ना बोली तो कोई हदीस होगी ना। तो कभी उन्होंने हदीस से भी अमल कर लेंगे, थकिया मैं मेरे को उसका बैठा नहीं। तो ऐसे लोग होते हैं हमारे बहुत से कि वो इस किस्म की बातें नहीं कर जाते। कहना वो भी 8 पढ़ते रहते, कोई हदीस तो होगी ना उन्हें बोली, तो मैनू आज ऐसे तो ही अमल कर लेंगे, मेरे को उठा बैठा नहीं कर। मैं क्या तू बह के पढ़ लै तो गल है भी उन्होंने को कोई नहीं हदीस है। कहेगा अच्छा बह के पढ़ लो। मैं क्या नहीं उठा जाता तो बह के पढ़, उन्हें बह के पढ़ ली। मैं क्या चल 20 तक। तो बाहर सूरत मेरा कहना यह था कि लोग इस किस्म की सोच कर भी बाद मर्तबा अमल को छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ा ना करो, 20 पूरी किया करो। अल्लाह अकबर। हदीस शरीफ में आता है कि जब ये महीना आता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैदियों को रिहा कर दिया और हर साइल को अता फरमाते। जो आपसे सवाल करता था आप उसको खाली नहीं लौटाते। जनाजे बड़ा दिल खुश हुआ जब हमने ये सुना कि उस दिन ये हमारे जो आए हैं मार्शल्लाह वाले, इन्होंने तकरीर की, वो तकरीर बहुत अच्छी। मेरा दिल खुश हुआ, इसमें इस्लामी झलकियां नजर आती। तो उन्होंने कहा कि हम बहुत से कैदियों को रिहा कर रहे हैं रमजान शरीफ की आमद की वजह। मैं कहा ये हुजूर की सुन्नत, अल्लाह ऐसे लोग लाए जो सारी सुन्नतों पर और शरीयत पर अमल करें। मैं कहता हूँ हमारा मुल्क रहमतों बरकतों का गहवारा था। मैंने पहले इशारा किया है ना कि हर साल तूफान से इलाज कितने आते थे, कितनी तबाही होती थी। अब शुरू में आया है और फिर हट गया। रहमत होगी, जब रहमत हो जाए ना सारे ठीक हो जाते। वो एक बादशाह था, उसने ख्वाब देखा कि उसकी छत के साथ तलवार लटकी हुई। सुबह उसने ताबीर पूछी, लोग बताने से आजिज आ गए, हैरान हो गए। एक बड़ा गरीब आदमी था। बादशाह ने ऐलान किया कि मेरे ख्वाब की ताबीर बताए, मैं उसको 500 अजरफी दूं। एक गरीब आदमी था, वो भूखा, बच्चे उसके भूखे घर में फाके आते थे। तो कहेंगे किसी बुजुर्ग के पास जाऊं, उससे पूछूं तो ये मुझे अशरफियां मिल जाए। जंगल में निकल गए कि कोई अल्लाह का बंदा निकले मिल जाए। क्या देखा कि एक कुएं में से एक बहुत बड़े सांप ने मुंह निकाले।
बहुत बड़े सांप, और वो इंसानों की तरह कलाम करने लगे। कहेगा तुम कैसे आए हो, तुम्हारी क्या आदत, डरे नहीं। किसने कहा कि तुम कौन हो, उसने कहा कि मत पूछो, तुम ये बताओ तुम्हारी हाजत क्या है। कहेगा जी ये हाजत है, ये बादशाह तो ख्वाब आया, अगर मुझे ताबीर पता चल जाए तो मैं गरीब आदमी हूं। उसने कहा अच्छा मुझे क्या दो, कहेगा आधे तुम्हारे, आधे तुम्हारे। उसने कहा वादा पूरा करोगे ना, बिल्कुल ठीक। उसने कहा बादशाह के ख्वाब की ताबीर ये, क्या उसको कह दे कि यार बादशाह तेरे वजीर जो है ना तो तुझे कत्ल करने का मंसूबा बना रहे, तो अब अगर तू इनको हटाएगा नहीं तो तेरी कैद। तो बड़ी खुशी से दौड़ा हुआ आया, उसने बादशाह को आकर ताबीर बता दी। बादशाह बड़ा खुश हुआ, उसको पहले भी बेनक्सी पड़ी हुई थी। उसने 500 अजरबी दे दी, और जो वजीर थे उनका मुहासबा करके उसने उनको पाबंद कर लिया और अपने आप को बचा लिया। अब जिसने 500 अजरबी ली ना, कहने लगा भी चल कम तो हो ही गया, ऊंचेरी बादशाह को ख्वाब हो रही है देखी जाएगी, उसको आधे कोई नहीं दे। वो तो वादा करके आया था ना कि आधे तुझे दूंगा। वो कहेंगे आप कौन सा है, चलो नहीं बैठो, वो कोई ना गया। बादशाह को फिर ख्वाब आया, उसने देखा कि ख्वाब के साथ एक लोमड़ी सी लटकी हुई। उसने फिर ऐलान किया, कोई ताबीर ना बताए। तो उसने कहा मैं 500 अजरबी दूंगा जो वो फिर आया, फिर वहीं गया, उस सामने फिर मुंह निकाला तो कहने लगा कि बादशाह को ये ख्वाब है। उसने कहा तू झूठा आदमी, तू पहले वादा करके गया था तो 250 अजरबी नहीं लेके आया, तू झूठा आदमी है, अब मैं तुझे नहीं बताऊँ। कहने लगा तेरी मेहरबानी आप बता दे, वो इकट्ठा ही 500 लाके दे, इकट्ठी 500। उसने कहा देख वादा सच्चा है कि फिर कुछ नहीं। उसने कहा तो फिर जाएगा तो फिर याद रख आइंदा नहीं बताऊंगा। कहेंगे नहीं। उसने कहा अच्छा जा बादशाह को कह दे कि ये लोमड़ी जो है ये मक्कार, ये तो थे वजीर जो नीचे के हुक्मरान हैं, वो तेरे मुल्क में मक्कारी से काम ले रहे हैं और पब्लिक को बहुत परेशान कर, तो बड़ी मक्कारी अय्यारी हो रही है, लूट मार हो रही है, अवाम को तंग किया जा रहा है, उनके हुकूक की परवाह नहीं की जाती, तो अपने मुल्क पर कंट्रोल कर और ठीक कर, तेरा मुल्क तबाह हो जाएगा, अवाम तबाही और गरीबी का शिकार हो जाएंगे और तेरे खिलाफ हो जाएंगे। उसने आकर ताबीर बताई, बादशाह ने कहा बिल्कुल ठीक है, उसको 500 अजरबी दे, और उसने जरा सख्ती की, हालात ठीक हो गए, उसकी नीयत फिर खराब हो गई। चलो अब बादशाह को फिर ख्वाब छोड़ा आना, वो 500 अजरबी लेगा, फिर कर बैठ। बादशाह ने फिर ख्वाब देखा तीसरी मर्तबा कि छत के साथ बिल्ली लटकी हुई है। उसने फिर ताबीर पूछी कि अब जो ताबीर बताएगा मैं उसको 1000 अजरबी दूंगा, पहले 500 अब 1000। उसको फिर लालच आया कि आपको 1000 अजरबी मिल रही है, वो फिर चला गया। जब फिर गया ना तो उसने फिर कौन बार निकाला, उसने कहा तू बड़ा झूठा आदमी है। कहने लगा मैं कसम खा के कहता हूं कि अब मैं इंसाफ करूंगा, वो 500 पहले की और 500 ये 1000 पूरी लेकर आऊंगा, अब के बता। और अगर अब मैं तेरे साथ धोखा करे करूं तो फिर कभी ना बताऊं। उसने कहा अच्छा जा बादशाह को कह दे कि अब तेरे मुल्क के हालात ठीक हो गए, दिल्ली जो है ये नुकसान नहीं पहुंचाती, और अगर पहुंचाती भी है तो उस वक्त के जब के निगाह हटा ली जाए। तो अगर तू इसी तरह निगाह रखेगा तो तेरे मुल्क के हालात ठीक रहेंगे, इसी तरह निगाह रख और कंट्रोल रख, और फिर खैर है। अब खैर हो गई है, खतरे जो है वो मक्कारियां यारियां दूर हो गई। उसने जाकर ताबीर बताई, बादशाह बड़ा खुश हुआ, उसने 1000 अजरबी दे, बल्कि खुश होकर कहा भी तूने पहली की ताबीरें बताई 2000 दे। अब वो पहले भी और पिछले भी सारा हिसाब किताब करके लेकर उसके पास गया ना, कहेगा फिर पिछली गलतियां माफ कर दे, ले ला सारा। उसने कहा पता अब तू क्यों आ गया, इसलिए कि सारा मुल्क ही ठीक हो गया। जब सारा मुल्क ठीक हो गया तो तू भी ठीक हो गया, और जब पहले वो खराब थे तेरी भी नीयत खराब थी, तो अब तो तू इसलिए आ गया है कि अब सारे ही हालात दुरुस्त हो गए हैं, तो मियाँ सारे हालात दुरुस्त हो जाए तो हम सब भी ठीक हो जाए, सारा मामला दुरुस्त हो जाए तो सभी दुरुस्त हो जाए, सारे मामला दुरुस्त हो जाए हैं। तो वो बात दूर चली जाती है, जुम्मे का वक्त होता है बड़ा थोड़ा। मैं हर ये कर रहा था कि हुजूर कैदियों को रिहा कर देते थे और हर साहिल को अता फरमाते थे। हुजूर ने फरमाया रोजा भी और कुरान भी शफाअत करेंगे, शफाअत करेंगे क़यामत में। ऐसे नमाज तरावी में कुरान सुनते हैं, सुनना भी
فرمایا ہر نیکی کا بدلہ 10 سے لے کر 700 تک ہے، لیکن رمضان ایسی چیز ہے، روزہ ایسی چیز ہے کہ اللہ فرماتا ہے اس کا اجر و ثواب اور بدلہ 700 میں یا 1400 میں منحصر نہیں ہے، وہ میری مرضی اور رضا پر ہے، جتنا میں چاہوں بدلا دوں۔ روزہ دار جب روزے کی افطاری کا وقت آتا ہے تو جو دعا مانگتا ہے وہ اللہ کے فضل سے قبول ہوتی ہے۔ فرمایا افطاری کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ روزہ افطار کرنے سے پہلے دعا میں، درود میں اور ذکر اذکار میں مشغول ہو جایا کر، اور پڑھتے پڑھتے اس وقت روزہ افطار کیا کرو۔ اس وقت جو دعا قبول کی جاتی ہے، دعا ہوتی ہے، وہ قبول ہوتی ہے اللہ کے فضل سے۔ حضور نے فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک تو خوشی اس کو افطاری کے وقت نصیب ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اس وقت نصیب ہوگی جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ اللہ اکبر، بے شمار برکتیں ہیں، رحمتیں۔ چند ضروری مسائل عرض کرتا ہوں۔ روزہ جو ہے، روزہ یہ کیا ہے؟ بنیت عبادت، کھانے پینے اور شہوات نفسانی سے رکنا، باز رہنا۔ ہر روز کے روزے کی نیت ضروری ہے، ہر روزے کی، یہ نہیں کہ پورے مہینے کی آپ ایک ہی دن نیت کریں۔ ہر دن کا روزہ فرض ہے اور ہر روزے کی نیت ضروری، اور یہ سحری کھانا یہ بھی نیت ہے۔ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہنا مستحب ہے، تو زبان سے وہ کلمات جو مشہور ہیں وہ آپ پڑھ لیا کریں، اس سے ثواب ہو، کیونکہ دل کی اور زبان کی موافقت ہو جاتی ہے۔ اور نیت کرنے کا جو وقت ہے وہ صبح صادق سے لے کر دوپہر تک ہے۔ اگر دوپہر گزر گئی اور بعد میں آپ نیت کریں گے تو وہ روزہ نہیں ہوگا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مثلا بھول کر کھانا پینا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بھول کر کھانا پینا شروع کیا تو کھاتا ہی رہے، پر جب یاد آ جائے فوراً چھوڑ دے، اور جو منہ میں ہو وہ بھی نکال دے۔ بھول کر کوئی چیز منہ میں ڈال لی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی کو قے آ جائے خود بخود، خود ایسی حرکت نہ کرے کہ حلق میں انگلیاں مارے اور اس قسم کی حرکتیں کرے کہ قے آ جائے، اگر قے غلبہ پالے یعنی خود بخود آ جائے تو قے کے آنے سے، الٹی کے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض مسئلے ایسے ہیں جو لوگ پوچھتے ہوئے شرماتے ہیں، وہ بھی میں کرتا ہوں۔ اگر روزے کی حالت میں سوتے ہوئے احتلام ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بحالت جنازت اگر صبح ہو جائے، مثلا رات کو کسی نے اپنی بیوی سے مباشرت کی، وقت نہیں ملا یا غفلت سستی کی، صبح ہو گئی تو روزہ ہو جائے گا۔ مطلب اس نے نماز چھوڑی ہے اور دیر وہ جنازت کی حالت میں رہے گا، ایک تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے، دوسرا اتنی دیر روزے کی فضیلت کمی آ جائے گی، مگر روزہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اتفاق سے اچانک منہ میں مکھی چلی جائے یا دھواں گوشت کے اندر، علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس ٹیکے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ اس کی سخت حاجت ہو اور وہ بیمار ہو۔ ویسے طاقت کے انجیکشن نہ لگوائے کہ خام ہاں طاقت کے انجیکشن لگائے کہ روزہ جو ہے وہ زیادہ لگے نہ محسوس نہ۔ بیماری کی حالت میں اگر گوشت میں ٹیکا لگوائے، سخت مجبوری کی حالت میں، تو بعض علماء نے تحقیق کی ہے کہ وہ جائے، کیونکہ جب تک کوئی چیز میدے کے اندر نہ جائے اور دماغ کے اندر نہ جائے اس وقت تک روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور یہ گوشت میں جو ٹیکا لگایا جاتا ہے یہ دماغ میں اور میدے میں نہیں جاتا۔ آپ کہیں گے اس کا اثر تو جاتا ہے، تو اثر تو پھر غسل کرنے سے بھی جاتا ہے، نہانے سے بھی دماغ پر اثر ہوتا ہے۔ تو باہر صورت بحث نہیں کرنی چاہیے، یہ بڑے بڑے علماء کی تحقیق ہے۔ بہت چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قصدن کھانے پینے سے، جمع کرنے سے، حقہ، سگریٹ، تمباکو وغیرہ کھانے پینے سے، دانتوں سے خون نکلا اور وہ پی گیا، کان میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر نہاتے ہوئے کان میں پانی چلا جائے خود بخود تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر جان بوجھ کے تیل ڈالے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کلی کرتے وقت حلق میں سے پانی نیچے اتر جائے، ناک میں پانی ڈالتے ہوئے دماغ کو پانی چڑھ جائے، تو ان چیزوں سے روزہ
छूट जाएगा, इनमें एहतियात करनी चाहिए। बाद हालतें ऐसी हैं कि जिनमें कज़ा लाजिम होती है और बाद हालतें ऐसी होती हैं जिनमें कफारा पड़ जाता है। इकराह शरई, मतलब कोई शख्स मजबूर करता है कि रोजा तोड़ वरना मैं तुझे मार दूंगा, या कोई शख्स अचानक बड़ा सख्त बीमार हो गया, ऐसी सख्त बीमारी हो गई कि डॉक्टर ने कहा कि इसको अगर दवा न दी जाएगी या फलां के लिए अंदेशा है मरने का, तो ऐसी सख्त बीमारी हो जाए या कोई शख्स रोजा तोड़ने पर मजबूर करे गैर मुस्लिम या कोई जालिम के अगर तू रोजा नहीं तोड़ेगा तुझे मार दूंगा, तो ऐसी हालत में अगर वो रोजा तोड़ता है तो उसकी कज़ा लाजिम होगी, कफारा नहीं होगा, क्योंकि उसने हालत मजबूरी में ऐसा किया। वक्त में गलतफहमी हो गई, शहरी का वक्त गुजर गया था, उसको पता ही नहीं चला, उसने समझा कि अभी है और कुछ खा पी लिया। इसी तरह वक्त से पहले इफ्तार कर लिया, समझा कि वक्त हो गया लेकिन अभी नहीं हुआ, तो वक्त में गलतफहमी हो जाए तो ऐसी सूरत में भी कज़ा लाजिम होगी, कफारा नहीं होगा। और बगैर नियत के रोजा रखा, नियत नहीं की, उसकी भी कज़ा लाजिम। जिन सूरतों में कफारा देना पड़ता है वो है कि बंदे पर शहवत का गलबा हो जाए तो वो जमा कर बैठे घर में। इसी तरह कसदन खा पी ले, कसदन खाने पीने से और मुबाशरत वगैरह करने से रोजा टूट जाता है। उसका कफारा क्या है कि या तो बर्दा अदा करे, अब बर्दे तो यहाँ है नहीं, तो तय कर तय 60 रोजे रखे लगातार, दरमियान में एक रोजा भी न छूटे, अगर एक छूट गया फिर पहले से रखने पड़े, या फिर 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाए जैसा कि खुद खाता है, ये है कफारा। बाद हालतों में रोजा न रखने की रुखसत और इजाजत, मसलन सफर, हमल, रिवात, मर्ज, बुढ़ापा, खौफे हिलाको इकरा, नुकसान अकल, जिहाद, हैदो निफास, इन सूरतों में रोजा न रखने की रुखसत और इजाजत दी गई। सफर में आपको इजाजत है, लेकिन अगर आप रखें तो ना रखने से बेहतर है, क्योंकि फिर ये दिन नसीब नहीं होते। अमल की हालत में औरत रोजा छोड़ सकती है, लेकिन अगर रख सकती हो तो रखे। बच्चे को दूध पिलाने का जो जमाना होता है 2 साल का, उसको रिदात कहते हैं, तो दूध पिलाने वाली औरत भी बच्चे को दूध पिलाती है, तो दूध पिलाने की वजह से अगर उसकी तबीयत पर, उसके दिल पर असर पड़ता है तो वो रोजा छोड़ सकती है। मर्ज की हालत में बढ़ाते और खौफे इला, समझे कि मैं खौफे इकरा कि रोजा रखे तो मर्ज और पड़ जाएगा या कोई मार देगा, तो इसी तरह जिनके अकल ठिकाने नहीं है, दिमाग खराब है, जिहाद की हालत में औरत है तो निफास की हालत में रोजा नहीं रखेगी, इनमें अल्लाह ताला ने इजाजत दी है, रुखसत दी है कि वो रोजा ना रखें, मगर याद रखो कज़ा लाजिम। यहां से ये न समझ लेना कि हैज़ो निफास की हालत में रुखसत है, रखे तो बेहतर है, ना रखे तो नहीं, सिर्फ सफर की बात कर रहा हूं। सफर में, हमल में, रिदात की हालत में औरत रोजा रखे तो ना रखने से बेहतर है, लेकिन ये जो है ना, ये हैज़ो निफास की हालत में तो बिल्कुल रोजा नहीं रखे, कज़ा करेगी बाद में। ये रोजे जितने छोड़ेंगे सफर, मुसाफिर वगैरह, ये जिनका मैंने नाम लिया जो रोजा छोड़ेंगे, उनको रमजान के बाद, दूसरे रमजान के आने से पहले पहले जितने रोजे छोड़े हैं उनको रखने पड़ेंगे। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, चंद मसाइल मैंने बयान किए हैं, इसके अलावा भी कोई मसला पूछना चाहे तो पूछ सकता है। मैंने जैसे अर्ज किया है, अब रमजान शरीफ का महीना है, आप हजरात बहुत ज्यादा तवज्जो करें इस मस्जिद की तामीर की तरफ। मस्जिद माशाअल्लाह ज़ेरे तामीर है और अब इसके पिलर खड़े करने हैं, और उसके बाद पहली तो छत्ती पड़ेगी और उसके बाद दूसरी बड़ी छत पड़नी है, जिस पर बहुत ज्यादा खर्चा चाहिए। तो आप हजरात इस मामले में तवज्जो से काम लें, अल्लाह तबारक व तआला खैर और बरकत फरमाए। मैं आपको बताता हूँ कि मुझे अफ्रीका से फिर दावत आई है, जैसा कि मैं पिछले साल गया था 76 में, तो वो कहते हैं कि तुम रमजान शरीफ यहाँ आकर गुजारो। तो मैंने उनको लिखा है कि मैं आखिर रमजान में इंशाअल्लाह आऊँगा, तो मेरा ख्याल ये है कि मैं अभी रमजान शरीफ के वक्त के करीब जाऊँगा, हरमैन तैयबैन हाजिरी देते हुए चंद दिन गुजारते हुए फिर जाऊँगा अफ्रीका। वहाँ तबलीग के सिलसिले में मैं गया था पिछले साल, अल्लाह ने बड़ी बरकत फरमाई थी, बहुत से लोगों के अकीदे दुरुस्त हुए और बड़ा ही फायदा हुआ मसलक को।
تو پھر میں نے کہا ہے کہ شوال جی کا 2 مہینے وہاں تبلیغ کروں گا اور پھر حج کے موقع پر پھر آ جاؤں گا اور حج کر کے انشاءاللہ العزیز واپس آ جاؤں گا. یہ پروگرام ہے, دعا کریں اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے. میں چاہتا ہوں میرے جانے سے پہلے پلر کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد چھت کے سلسلے میں ہدایات دے جاؤں گا. تو یہ تعمیر کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. آپ حضرات اس طرف خصوصی توجہ کریں. جن حضرات نے سنتیں پڑھی سلام یا نبی اللہ سلام علیک یا شفیع اللہ سلام علیک یا نبی اللہ سلام علیک. احمد لیس مثلک احد احمد لیس مثلک احد احمد لیس مثلک احد مجتبی مصطفی سلام علیک یا شفیع اللہ سلام علیک انکا مقصدی ملجائی انکا مقصدی ملجائی انکا مقصدی ملجائی انکا مدعا سلام علیک یا رسول اللہ سلام علیک یا نبی اللہ سلام علیک. واجب حبک علی المخلوق واجب حبک علی المخلوق واجب حبک علی المخلوق یا حبیب العلا سلام علیک یا نبی اللہ سلام علیک یا نبی اللہ سلام علیک. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. جس کی ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ جس کی ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پتا سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. ابرو دودھ شاخا کس پہ بھروسہ نہیں کس جگہ اور کہاں تیرا چرچا نہیں اور ایک میرا ہی رحمت میں جاوا نہیں